the course. Okay. This is your delet and departure. Okay. How do we do it? If the course lies between 0 to 90 or 270 to 360, we our reference is north end of the meridian. Our reference is north end of the meridian. Now let me take, so what we do, we subtract that course from, suppose this is your 045, course is 045, course is 045 degrees. Okay, 045. Your reference will be this. You will take this angle with reference to this. So what do you do? 045 ये है minus 000. So your course will be, since you have taken a north end, it will be prefixed with north 45. And since it is east of the 45, since it is east of the meridian, it will be east. Okay, let's take the course is 335 degrees. Okay, this is course, we have taken it from the meridian because 270 से ऊपर है, तो we have to take this value. तो क्या करेंगे हम? Tell me, what is the course? We are taking from north end, we have to subtract. तो कितना हुआ? 360 minus north. Tell me. 25 degree west. 25 east west. The west. West. Very good. Okay, let's take a course which is say 255. Now since it is below this, as I said, from 90 through 180 to 270, the course lies there. We will take the south end of the meridian. We will take 180. उसे करना क्या course हुआ? Will be south. South 75 west. 75 west. 75 west. Okay, got it. Perfect. Okay, same thing. यहाँ मान लो 135 है, naturally will be south. 135 है, 135 degree, it will be south 45 east. ठीक है. First we converting. Okay, now we have been given the course and distance. Suppose distance is given, so I said we have a triangle. ये मिटा दें? Yes, sir. Okay. We have a triangle. Now we'll break that, because that is, if you have done that clean saving, ये यदि course है, course, this is your distance. Its north-south component will be delet. Okay. East-west component is departure. To break this into north-south component, east-west component. Okay. So what is the, suppose the distance is there, so what is the delet equal to? This distance, a formula है. Departure upon delet equal to tan cos. What is delet is equal to with reference to distance? Delet is equal to how much? Cos course into distance. Distance into cos cos. And then departure is equal to Distance into sine course. Distance into sine course. इसमें कोई confusion नहीं. Okay. As I said, now this is from point A to point B. Let us take one component, we talk about this. The latitude is 20 degrees 30 minutes north. Okay, longitude is 075 degrees 20 minutes west. Okay, distance is say 100 miles. Distance is 100 miles. Okay, now find the delet, because once we know the delet and departure, we'll convert departure into delong to get the position. We'll apply that here and get the position. Okay, so what is the delet? 100 miles the distance. Course is let's take 40. Okay.
बताइए। तो dlet is equal to, just I am taking an example just to, okay, what is dlet is equal to 100 into cos of, because this is 040, quadrantal form क्या होगा, north 40 east, the cos of 40, क्या वैल्यू आई, add to this suffix with the 76.6. north is north, तो कितना है Sir, 76.6. 76.6. What will be suffix? The Not, sir. prefix of Not, the sir. Not quadrantal course will be the. Let us find the departure. 100 into sine 40 degrees. निकालिए कितना वैल्यू है, 64.28. 64.28. Okay. East or west? East. Suffix by east. Okay. Having found the dlet in departure, we apply that dlet to get the position B. We apply dlet to this. This is latitude A है, the latitude and long दिया हुआ है, तो dlet कितना हुआ? How much is dlet? Convert in degrees and minutes. 01 degrees. 16.6. What do you get? Add because north, we are going toward the north, so we'll add that up. 6. 21.46. 21 degrees. This is the B latitude. Okay. We require D long here. We require D long here. 075 degrees 20 minutes east किया था. D long. हमारे पास है क्या? Departure. Can you apply? Can you apply departure? No, because departure is a distance, east-west distance between the two places. We require D long. What is D long? Is the angle at the pole or arc of equator contained between the two meridians. Okay, it's a plain sailing. Your departure lies somewhere in the middle, somewhere in between. यहाँ कहीं होगा जो आपका कोर्स है ऐसे, कहीं बीच में है departure lies. So, and we know that departure upon D long, we know that formula, departure upon D long is equal to Cos of mlet. cos of mlet. If we know how we know the, if we know the mean let, we can apply that D long is equal to departure divided by cos of mean let, isn't it? So let us find the mean let. We don't know latitude. How do we find? हमने पहले भी किया हुआ है. We add them together, divide by 2, same latitude, same hemisphere. Okay. Different hemisphere में तो क्या करते हैं? Different hemisphere. Sir, higher को lower से subtract करके then divide by 2. Divide by 2. Okay, let's find the mean latitude. निकालिए आप लोग. Sir, 21 degrees 8.3 minutes. 8.3 minutes. Okay, mean latitude. Departure हमारा हमने कितना निकाला? 64.2. तो D long will be equal to how much? 64.28 divided by cos of 21 degrees 08.3. कितना आ रहा है? निकालिए. 64.28 divided by cos of 21 degrees 08.3. कितना आ रहा है? 68.92. 68.92 east-west, same as departure. East, sir. Now इसको डिग्रीज मिनट में कन्वर्ट कीजिए. 01 डिग्री 08.92 east. Longitude east
D long is also is going more towards it. We add it. It becomes 28.92. Okay. ये तो हम बात कर रहे हैं कि there is only one course and then we are doing. Okay. I said, what is day's work? What is day's work? Yesterday, today morning, we discussed about the day's work. Yes, sir. What is day? Is nothing but performance of a ship on her voyage determined from one noon to the next noon on daily basis. Okay, so day's work is nothing but summary of the ship's passage from one noon to next noon. You may be doing different courses, different speed. Now, where you cannot determine the noon position. So we want to know what should be our position. You have done different courses. Okay, so as I said, in the morning we discussed. ये मिटा दें? मिटा दें इसे? Yes, sir. Yes, sir. एक कन्वर्ट इनटू 3 फिर ये तो रहेगा ही, उसको मैं आगे इसके आगे भी रुके ना, कन्वर्ट quadrant. Okay, as I said, you are going A से चले B, चलो ठीक है. You applied course, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आपने डिस्टेंस है, आपको पॉइंट पोजीशन B मिल गया. B से C चले, अगेन इस पोजीशन मिल गई, इस पर अप्लाई किया, हमको C मिल गया, C पोजीशन. C से D चले. Instead of doing this, again हमने इस पे D लाइट डिपार्चर लगाया और we got position D. But instead of doing separately, if we calculate the D let of all, departure of all, okay, D let of and departure of all, can we not add up all this algebraically and we get the value which will be equal to the D let from here to the D? Yes or no? Yes, sir. Okay, can we do same thing departure? Suppose ये आपका D let मिल जाएगा, ये आपका D let मिल गया. D let किसको? इन तीनों को ऐड कर दिया, मान 3 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन जो भी है, we add that all D let, सबका इंडिविजुअल D let निकाल करके, and then we take out the departure. इसकी ये departure, ये जो departure यहाँ निकला है, ये वाला departure, इसका departure, इसका तीनों को ऐड कर दे, then we can we not get this departure? Yes or no? जवाब दी, नहीं समझ में आया? प्लीज आंसर. सर एक बार I और try. एक बार बताइए ना. आगे। हमने कहा कि भाई मान लो हमने, लेट मी स्टार्ट अगेन. आप यू स्टार्टेड फ्रॉम ए. ओके, यू वेंट ऑन दिस कोर्स, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये बी है. तो हमने क्या किया? वी फाउंड डी लेट एंड डिपार्चर ऑफ दिस प्लेस. ओके, डी लेट निकाला, departure, then we found the D long and we got the position. Okay, good enough. Okay, then we did another course which went here, C. Again इस position में हमने D let लगाया and we applied departure and we got again position C. Then again you did this, इसका D let निकाला and इनका departure निकाला, position of C में apply किया जैसे हमने किया and we got position B. Instead of doing separately, can we not join this D let of individuals together? ये जैसे A से B का जो D let है, B से C का D let है, C से D का D let है, तीनों को algebraically ऐड करते हैं. भाई जो नॉर्थ है उसको नॉर्थ लिखेंगे, जो साउथ है उसको साउथ लिखेंगे. जो साउथ, जैसे ये साउथ है इसमें D let, दूसरा इसमें भी साउथ है तो दूसरा एक नॉर्थ है, और तीनों को algebraically ऐड कर देंगे. Can we not get the final D let from A to D? ये D let नहीं मिल सकता है?
मिल जाएगा सर। मिल जाएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। सेम थिंग डिपार्चर, हमको डिपार्चर चाहिए तो हम डिपार्चर, एक ये डिपार्चर ये ले लें, एक दूसरा डिपार्चर हमारा यहाँ तक ये डिपार्चर ले लिया, फिर तीसरा डिपार्चर हमने जो भी यहाँ से यहाँ जो ये डिपार्चर है, इन तीनों को ऐड करने एल्जेब्रिकली, तो कैन वी नॉट गेट द डिपार्चर फ्रॉम ए टू डी? Algebraically we add them, can we not get the departure from A to D? यस सर, मिल सकता है। Okay, तो डेज वर्क में यही किया जाता है. We have several courses, we convert into quadrantal form. Okay, then what we do, we find calculate DLAT and the departure of individual courses. पहले हमने क्वाड्रेंटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसका डीलर डिपार्चर निकाला, एंड देन we add all DLATs, so calculated all DLATs and departures so calculated algebraically. जो नॉर्थ है वो, ये नॉर्थ ज्यादा होगा नॉर्थ आएगा डीलैट. ठीक है, तो हमको क्या आ जाएगा फाइनल देयर आफ्टर टू गेट फाइनल DLAT and departure from departure to arrival position. ओके, तो हमारे पास DLAT आ गया, जो भी DLAT की वैल्यू आ गई, फाइनल DLAT. वी हैव गॉट डिपार्चर. ओके, what will be the course made good? Course made good. आप फिगर ड्रॉ कीजिए. लेट्स ड्रॉ द फिगर. ये आपका फाइनल डिपार्चर है, ये फाइनल DLAT है. What will course made good? ये DLAT है and this is your departure. ये कोर्स हमको चाहिए, बताइए. डिपार्चर हमको मिल गया है, फाइनल डिपार्चर हमको मिल गया, फाइनल DLAT मिले. व्हाट विल बी द कोर्स इक्वल टू? Tan Course course is equal to departure Departure over departure upon DLAT. V course will be tan course is equal to departure upon DLAT. Okay, now what will be the distance made good? But ये कोर्स है, हमको आया डिस्टेंस मेड गुड बी फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द डिपार्चर पोजीशन टू अराइवल पोजीशन. जिसका डिपार्चर ये है और DLAT ये है. हमने कैसे कैलकुलेट किया था? व्हाट इज द फार्मूला? भैया ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए. यहाँ देखिए, मैं यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ मिटा दिया था, मैंने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. ये कोर्स है, ये डिस्टेंस है, दिस इज डिपार्चर. तो डिपार्चर अपॉन डिस्टेंस इज इक्वल टू साइन कोस, एंड DLAT upon distance is equal to cos cos. Okay, ठीक है, isn't it? तो what will be distance made good? बताइए. With any formula, departure divided by what cos? Sin or cos? फॉर्मूला देखिए.
फॉर्मूला देखिए क्या है, ये डायग्राम देखो ना, बताइए। Sir, sign. साइन, और वी कैन गेट इट d lat divided by cos cos. Okay, is that clear? Okay, मान लीजिए इसमें करंट भी होता, मान लीजिए इस हमने 3-4 कोशिश किए, उसमें करंट भी है, करंट भी है, ये मिटा दें। Can we rub this off? Yes, sir. ठीक है, ओके। नाउ मान लीजिए उसमें करंट भी है, लेट्स टेक केस अगेन, मैं उस पे जाता हूं, लेट मी गो बैक अगेन। करंट भी, मान लीजिए आपका कोर्स ये है, यहां से आप गए, यहाँ करंट मान लो साउथ वेस्टर्ली 5 नॉट, मतलब पहला हुआ कोर्स, फिर दूसरा लिया हमने कोर्स जो भी है उसमें से, उसका भी करंट ले लिया हमने, फिर तीसरा वाला कोर्स, उसका भी करंट ले लिया जो भी साउथ वेस्ट है, ओके। फिर चौथा वाला कोर्स, फिर उसमें भी करंट ले लिया। कैन वी नॉट जॉइन ऑल दिस टुगेदर? वेक्टर तो वही है ना, यदि करंट है तो करंट को हम एक साथ नहीं ऐड, मान लो 24 घंटे में 12 बजे से 12 बजे, नेक्स्ट 12 बजे 24 घंटे करंट है साउथ वेस्टर्ली, दैट इज इक्वल टू साउथ 45 वेस्ट एट 5 नॉट। तो कितना 24 घंटे में कितना डिस्टेंस हुआ? 5 नॉट मान लो करंट है, या लेट्स टेक 2 नॉट करंट है, तो 24 घंटे में कितना करंट है? 48 माइल। तो 48 माइल का उससे जो डी लैट डिपार्चर है वो हम कैलकुलेट करेंगे, विल that add as separate vector। करंट दिया हुआ है, सब कैलकुलेटिंग का हम 1 घंटे का कैलकुलेट करें, फिर अगले 1 घंटे, नो, वी जॉइन देम टुगेदर, वेक्टर्स हैं, दे कैन बी एडेड, ओके, वेक्टर दे हैव एडेड। तो उसमें क्या होगा कि वो 24 घंटे का हमने करंट ले लिया, 24 घंटे 48 माइल, उसका डी लैट डिपार्चर कैलकुलेट कर दी, एंड वी एडेड दैट, बट दैट विल हैव इफेक्ट, दैट विल हैव इफेक्ट इन पोजीशन, दैट विल हैव इफेक्ट इन कोर्स एंड डिस्टेंस मेड गुड। Okay, is that clear? Is that clear? Yes, sir. Okay, now I'll take thing. Now first thing, what we have to convert. Now what happens if the course is given in the compass course? हमको क्या लेना है? ट्रू कोर्स। हमको क्या लेना है? ट्रू कोर्स। तो कंपास कोर्स में we have to apply deviation and variation. Okay, just to refresh your mind, let's talk about the variation. ये geographical north है, ये magnetic meridian है, magnetic north। तो magnetic needle will show 0 0 0 here। तो मान लो इसके बीच में एंगल है 5 डिग्री का, तो मैग्नेटिक नीडल कितना दिखाएगी? 0 0 0। एक्चुअल कितना है? 3552, isn't it? तो यहां क्या होगा? when the कंपास वेस्ट, एरर वेस्ट, ठीक, कंपास ज्यादा दिखाएगा, कंपास कितना दिखाएगा? 0 0 0 डिग्री, 5 डिग्री वेरिएशन है। ट्रू कितना है? 355। तो वी सबट्रैक्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक कोर्स, जो भी हमारा मैग्नेटिक कोर्स है, ओके, उसमें से हम लोग, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक कोर्स मान लो ये है आपका 0 0 0, 5 डिग्री वेस्ट, हम हटा देंगे, और ट्रू कोर्स विल बी, but here we have not taken the deviation, okay। मान लो this, ये मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है, instead of this मैग्नेटिक नॉर्थ इधर 5 डिग्री पे, तो ये कितना दिखाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नीडल 0 0 0 डिग्री मैग्नेटिक है। एक्चुअल कितना? एक्चुअल कितना? 5 डिग्री ईस्ट है, कितना होगा? ट्रू कितनी बेयरिंग है? ट्रू बेयरिंग क्या होगी? आई मीन
टू रीडिंग, नॉट बेयरिंग, टू रीडिंग, क्या होगा 5 डिग्री से, ये 0 0, बताइए। क्या हो गया? 5 degrees. हाँ, तो क्या होगा आपका रीड? हाँ, 005 दिखाएगा, 005 होना चाहिए, ट्रू। ये मैग्नेटिक 005 होता है। व्हाट डू वी इन्फर? इफ कंपास is least error is, we add, तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है 0 0 0, ओके, एरर है 5 डिग्रीज ईस्ट, मीन्स द मैग्नेटिक नीडल लाइज 5 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द ट्रू नॉर्थ, ओके, तो वी add, okay. Now in the case of deviation with the ship compass, the ship compass is influenced by the magnetic field of the ship, तो वहां भी वही चीज है। मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, शिप कंपास इज पॉइंटिंग 5 डिग्रीज वेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहाँ क्या क्या देगा ये यो शिप्स कंपास विल शो 0 0 0, लेकिन मैग्नेटिक कितना है, मैग्नेटिक कितना है 355, लाइकवाइज वी फॉलो दैट आल्सो। तो हम क्या करते हैं, तो 50 55, तो कंपास कंपास कोर्स इज सपोज 0 0 0 डिग्रीज, उसमें डिविएशन लगा देते हैं, डिविएशन इज 5 डिग्रीज। व्हाट इज डिविएशन? एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द हेडिंग ऑफ द कंपास नीडल। मान लो 5 डिग्रीज वेस्ट है, तो कंपास ये 0 0 0 जगह होना चाहिए 355 डिग्री, तो हम माइनस कर देंगे द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक, ओके। मान लो 5 डिग्री ईस्ट में होता मैग्नेटिक, नेचुरली तो रेड 0 0 0, लेकिन है क्या है 0 0 5 मैग्नेटिक, और ये है अगेन कंपास लीस्ट एरर ईस्ट 0 0 0 डिग्री, कंपास कोर्स उसमें 5 डिग्री ईस्ट है, वो ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल 0 0 5 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द कंपास कोर्स, जहां कंपास कोर्स दिया हुआ है, टू ट्रू कोर्स, ट्रू, एंड देन विल अप्लाई, विल गो अबाउट इट, विल लीव की मैं बात करूंगा अभी, तो विंड इफेक्ट विल आल्सो, फर्स्ट सिंपली वी गो वन बाय वन। Let's take the, let me give you the, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर विल गो वन बाय वन, ये बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैन सी दिस? पहले स्नैपशॉट लीजिए या लिख लीजिए, जैसा भी है, इसके और भी आगे है। डोंट बी फॉक्स बाय द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। At noon on 14 September, ship in position 40 degrees 12 minutes north, 76 degrees 46 minutes. Set course 250 compass, deviation 4 degrees west, variation 6 degrees west, at an engine speed of 16 knots. Okay, at 1600 hour, course was altered 287 degrees. Means from 1200 to 1600 hour, we have gone on this 250 course, compass course. Okay. 287 डिग्री कब चेंज किया है? एट 1600। डिविएशन वेरिएशन, एज वी नो डिविएशन चेंजेस विद कंपास हेड, while variation changes with the shift position, because meridians are cutting, the magnetic meridians are cutting the geographical meridian at different angles at different places, so variation changes with the place, while deviation changes with the heading. Okay, speed was decreased to 14 knots. At 2200 hours, course was again altered 277 degrees, 2 degrees west,
basic aviation, and speed of 40 knots was maintained till 060 hour next morning when the course was again altered. ये लिख लीजिए. You have take a snapshot as the case as you feel. लिख लिया आप लोगों ने या स्नैपशॉट ले लिया? इसमें आगे भी है थोड़ा. लिख लिया सर. ओके, इसके आगे भी है, इसको लिख लीजिए. Okay. Yes sir. Yes sir. Okay. Now let me go. पहले इसको ये निकालने दे. ये स्क्रीन कैन बी सीन. ओके. स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? Okay, now what we do, yeah, let us make, यहाँ जो होगा रो में we will write down the time from where to where. Okay. कॉलम में हम लिखेंगे
टाइम यहाँ लिखेंगे, जैसे 1200 नून ऑन कितना 15th तो कौन 15 सितंबर कहाँ है? गो बैक 14th September. 14 सितंबर 14th 1200 नून दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? हाँ, टू 1600 1200 टू 1600। ओके, यहाँ लिखिए फर्स्ट कंपास टू मैग्नेटिक देन मैग्नेटिक कोर्स। राइट हियर कंपास कोर्स deviation magnetic force, okay, magnetic force, variation true force। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना चाहिए ट्रू कोर्स को? उसके बाद ट्रू कोर्स को क्या करना चाहिए? क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वाड्रेंटल कोड सर। क्वाड्रेंटल कोर्स, ठीक है। Then we require distance. Right here, distance. First and foremost thing, at 1200 hours, 12 to 1600 hours, what was the course? 250 degree compass. Right here, 250 degrees compass. Deviation 4 degrees west, variation 6 degrees west. Deviation पहले 4 degree west, the compass west, error west। तो हमको मैग्नेटिक कोर्स के क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा? बताइए। सब्ट्रैक्ट सर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट विल बी दैट? बिकॉज़ वेस्ट है तो कंपास वेस्ट है, विल बी 2 4 6 मैग्नेटिक। व्हाट इज द वेरिएशन? 6 डिग्री। Again here मैग्नेटिक कोर्स वेस्ट, एरर वेस्ट, तो हमको अगेन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये क्या कोर्स हुआ? 2 3 2 6 सॉरी 240 minus 240 degrees, isn't it? यही है ना? बताइए। ओके, अब क्वाड्रेंटल कोर्स में कन्वर्ट कीजिए। लेट मी सी, 2 3 6 है तो कितना हुआ? नॉर्थ 60, 2 3 नॉर्थ होगा, साउथ क्या होगा? South South 60 west. 60 west. सर साउथ 60 वेस्ट। 60 west. South 60 west. Very good. Okay, what is the distance? Engine speed 16 knots. So how many miles ship travel? 64 miles सर। 16 into 4, 64. ये तो हो गया पहला वाला। Next, what it says? At 1600, course was altered to 287 degrees compass and speed was decreased to 14 knots till 2200 hours. So we write here second column 1600 hours to 2200 hours. Okay, what is the compass course? 287 degrees compass. Deviation कितना है? How much the deviation? 2 degrees west. 2 degrees west. Okay. तो मैग्नेटिक कोर्स कितना होगा? 285. 285 degrees मैग्नेटिक, सॉरी हाँ मैग्नेटिक कोर्स। उसके बाद वेरिएशन कितना है? 6 डिग्री वेस्ट। 6 डिग्री वेस्ट। कितना होगा? 279. अब कन्वर्ट कीजिए इसको क्वाड्रेंटल कोर्स। South 99 west. होल्ड ऑन बेटा, ध्यान से देखो हमने क्या बोला था? सर नॉर्थ 81 वेस्ट। नॉर्थ 81 वेस्ट। नॉर्थ 360 से, तो आप देखो 270 के ऊपर है तो कितना हुआ? नॉर्थ 81 81 वेस्ट। 81 वेस्ट।
ये ध्यान रहे, ये गलती हो जाता है आपकी, यू लूज मार्क्स, 3 मार्क्स। चेक, ये हो गया। डिस्टेंस कितना हुआ? 84 miles. 84 miles. 18, 19, 20, 21, 22, 6 hours. 6 hours, na? 84 miles. And at what speed? Speed 14 was reduced. 14. 14 knots. 14. Into 6, 84 miles. 84. Okay. Next, 2200 to 2200 to course was again ordered 277 degrees compass. कब तक? Till 6 o'clock in the morning. 2060 on 15th 0600. क्या कोर्स था? 277 डिग्रीज कंपस। बताइए, वेरी डिविएशन 2 डिग्रीज वेस्ट, कितना हुआ ये मैग्नेटिक कोर्स? 275. वेरिएशन 5 डिग्रीज वेस्ट, 270. 270। अब बताइए इसका कोऑर्डिनेटल कोर्स क्या होगा? So west. 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 वेस्ट सर। 200 कितना है? कितना 287 277 लिया ना? एक सही है सर। गलती हम कर गए, गलती का ध्यान नहीं सर, दीजिए। आप लोग बता नहीं रहे हो। आप क्वेश्चन at 2200 कोर्स और अगेन ऑर्डर 277। एक गलती है, मेरे से गलती हुई है, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे से गलती हुई है, ये गलती हो गई है। यहाँ डालिए 340, यहाँ 340। एक मिनट, यू एड at 2200 course was altered to, किधर गया? थ्री 340, गलती हुई है हमसे टाइप करना। 340, करेक्ट दिस। ओके, 340 नॉट 277। करेक्ट है 340, इसको करेक्ट कर दीजिए। ओके, डिविएशन कितना है? 2 डिग्रीज वेस्ट, करेक्ट है 2 डिग्रीज वेस्ट। कितना हुआ? 338. 8 degrees magnetic and variation was 6 degrees west। तो ये कितना हुआ? sorry, 5 degrees west, 5 degrees, not 5 degrees west, sir. 333. 333 degree। कहीं गड़बड़ हो रहा है। 340 2 डिग्रीज वेस्ट, 340 डिग्री 2 डिग्रीज वेस्ट। ओके, चलिए ठीक है, जो भी है उसी से करते हैं। लेट अस डू दैट वे, नो प्रॉब्लम। 2 डिग्रीज 5 डिग्री वेस्ट इसका है। कितना है? 333. North 27 west. 27 वेस्ट। कितना होगा? नॉर्थ 27 27 west. वेस्ट। रिमेंबर, ये कोऑर्डिनेट में बहुत ध्यान देना है, डबल चेक कर लीजिए, गलती ना होनी चाहिए। ओके, डिस्टेंस क्या हुआ? 14 नॉट्स का स्पीड मेंटेन के 14 नॉट्स कितना हुआ? 14 इंटू 8 आवर्स 112. 112। ओके, देन वी गो टू 062 06002 1200 आवर्स। क्या कोर्स है? 277 डिग्री वेस्ट।
2 डिग्रीज वेस्ट कितना हुआ 275 मैग्नेटिक एंड ऑफ कोर्स 5 डिग्रीज वेस्ट कितना हुआ Sir, 270. 270 ट्रू तो इसका क्वाड्रेंटल कितना हुआ Sir, west. West. नाउ यहाँ जो डिस्टेंस है नेचुरली वेस्ट है तो सी डी लाइट विल बी हाउ मच वॉट एवर डिस्टेंस into cos of course cos is 0 cos is 90 cos is 9 west is cos is 90 no west में cos is Yes, 90 हाँ तो ध्यान रखिए ओके Departure is equal to distance. departure is equal to distance ओके एंड कितना डिस्टेंस हुआ कोर्स और ऑर्डर Sir, 90 miles. 90. 15 6 are 90 90 only 90 okay now we are left with current तो करंट के लिए we write here current क्या है करंट करंट कितना दिया हुआ 027 तो 027 का क्वाड्रेंटल फॉर्म क्या हुआ नॉर्थ 27 बताइए क्या है ईस्ट डिस्टेंस कितना है बताइए 27. ओके Distance डिस्टेंस 48 miles. ठीक है we have converted the quadrantal course the courses to quadrantal course उसको हमने लिख लिया ओके उसके बाद we have got distances also ठीक है now we form because we want to now next step is to find the delayed departure and then we for individual courses and then thereafter we'll add them algebraically to get the final delayed and departure from departure to arrival position. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now you make it. मैं ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है? और नीचे मुझे चाहिए जरूरत पड़ेगी जब हमने निकाला है इसको, तो we have just kept this. इसको मिटा देते हैं. एक टेबल बनाइए, और टेबल इसी टेबल को फॉलो कीजिएगा. क्योंकि अलग अलग रखोगे चीजों को तो थिंग्स विल बी बेटर. तो यू विल मेक ए टेबल. फर्स्ट यू राइट कोर्स. ओके, कोर्स. डिस्टेंस. ओके, डबल लाइन कीजिए. डीलैट यहाँ डीलैट दीजिए. यहाँ राइट डाउन नॉर्थ एंड साउथ. ओके, यहाँ बीच में कॉलम दीजिए ऐसे. देन यू राइट डिपार्चर ईस्ट वेस्ट. ठीक है, फर्स्ट यहाँ और यहाँ एक यहाँ लिखिए ऐसे ये बना लीजिए. ओके, फ्रॉम 1200 hours, 14th 1200 hours to 1600 hours. What is the quadrantal course? South 60 west. Distance 64 miles. Okay, write down. Yeah, then you write 1600 hours to 2200 hours. दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? What is the course? North 81 west. Distance 84 miles. Again draw a line. Third, 2200 hours to 15th 0600 hours. What is the course? North 27 west. Distance 112 miles. Then again
0.060002 $1200। लेकिन इसको एक लाइन खींचिए। क्या कोर्स है बताइए, क्या है? वेस्ट। Then last is the current. North 27 east. Distance 48. हो गया सबका? मैं इसको रब कर देता हूँ। रिटन ये सबने कर लिया ये? रिमेंबर, कीप इट सेपरेट। ये कई लोग क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ को एक साथ लें एंड देन दे मेक मिस्टेक। देन दे मेक ए मिस्टेक, वो फिर कंफ्यूजन हो जाता है। कीप देम सेपरेट। नॉर्थ डीलेट सेपरेट, साउथ डीलेट सेपरेट। दैट बिकम्स इजी। हम इनको इधर ऐड करेंगे, साउथ को इधर ऐड करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो ज्यादा होगा वो डीलेट होगा। सेम थिंग ईस्ट, जो भी डिपार्चर ईस्ट है, डिपार्चर वेस्ट है, दोनों को सेपरेटली ऐड करेंगे एंड देन विल add them together algebraically. Whichever is more, that is the departure. सबने कर लिया? Yes, sir. Okay. Now let us find the first cos. D-lat बताइए। 64 into cos of 60 कितना आया? 32 south. 32। 32. साउथ में यहाँ डैश डालिए। ओके। डिपार्चर 64 55.43. 55.42. sin 55.42 कितना है? वेस्ट। तो 55। नेक्स्ट 84 miles। 84 into cos of 81 degrees कितना हुआ? नाउ रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखिए, your departure, if the north south component of course increases, departure decreases, D-lat increases। 45 डिग्री पे डिपार्चर एंड D-lat will be same। ये दोनों की वैल्यू, साइन की वैल्यू 45 पे वही है 1/√2, उसकी भी 1/√2, तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। But as the north south component increases, the D-lat increases and departure decreases। Departure, when the course is due north, the distance becomes the D-lat because departure becomes 0। north south component, east west component becomes 0, so that जो भी है वो north south component, the distance becomes the D-lat। if you are going more eastward, so 45 say 46 47 50, so your east west component increases and D-lat decreases। and when the course is due east or due west, your north south component has become 0, so your departure is equal to distance। ध्यान रखिए, तो वो यहाँ ध्यान रखिएगा। 84 कितना है ये? व्हाट इज द वैल्यू? हाँ जी 13.14। 13.14। ओके। अभी क्या है? वेस्ट बी लाइन डैश डाल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो गलती से पीपल राइट डाउन हियर दो दे हैव कैलकुलेट करेक्टली, लेकिन वो गलती हो जाती है। तो पुट अ डैश वेस्ट। बताइए कितना आ रहा है? 84 into 82.96 sir, 82.96। 82.96। Now how to check whether you are corrected? that आप क्या करिए, 82.96 divided by 13.14 should give you 81। tan inverse tan shift tan, देखिए 80.999 आ रहा है। That's how you check also। क्यों गलतियां होती हैं, nobody is infallible, हमसे भी गलती होती है, everybody makes mistake। तो how to check? आपने कैलकुलेट करके उसको उससे डिवाइड बाय डिपार्चर डिवाइड बाय D-lat इनवर्स tan, you must get that course, जो भी कोर्स है। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, लिख 112 पर निकालिए कितना है? 112 into cos of 27 degrees कितना है? नॉर्थ
कितना हुआ 99.79, यही है। वेस्ट है तो यहाँ डैश डालिए, यहाँ डालिए डैश, निकालिए कितना है। डिपार्चर कितना है? Sir, 50.8 west. 50.8 Eight. वेस्ट। हम लोग करेक्ट है ना, सही है? 50.84. ये सही है कि नहीं? ये वाला ये करेक्ट, ये थर्ड वाला 50.8 वेस्ट। तो मैंने मिटा दिया, आप देखिए फिगर ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, ये डैश 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 90 माइनस। नेक्स्ट नॉट 27 ईस्ट है, थर्ड 2200 to 0600, चेक करके बताइए, चेक करके बताइए। यस सर, सही है सर, 47 डिग्री। 48 माइल्स का 48 इंटू कॉज ऑफ 42.7. 42.8. क्या है नॉट, 42.76, यहाँ डैश, ये वेस्ट पे डैश डाली और 48 Sir, 21.8. 21.8, perfect. Okay, having found that, now let us add all north dlet, south dlet separately and then square. Okay, so north कितना है बताइए? 13.14 plus 99.79 plus 42.76 is equal to कितना है? ये कितना है? 32. ये नॉर्थ है, ये 32.07. ओके, सेम थिंग डिपार्चर कितना है? 21.8 ईस्ट, एंड ये जोड़िए दूसरा 279.18 sir. 279.1, सब लोग सही है ना? ये बस। नाउ वी लेट अस फाइंड व्हाट इज द फाइनल डीलेट इन डिपार्चर। जो छोटा वैल्यू है डीलेट का वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 32.0 साउथ, your final DLAT will be 123.69. minus 32 is equal to 123.69 north. डिपार्चर 279 में से 21.8 घटा दीजिए ईस्ट, तो आपका डिपार्चर क्या होगा? 279.18 माइनस 21.8, 257.38, यही है ना? ठीक है, हो गया? एवरीबॉडी इज हैप्पी? एवरीबॉडी इज हैप्पी? यही वैल्यू आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Now we have to find course and distance and position arrived. तो कोर्स का फार्मूला क्या है? tan course is equal to departure upon DLAT, sir. कितना है बताइए, कैलकुलेट कर बोलिए, बताइए। यू मस्ट राइट डाउन द फार्मूला इन एग्जाम, हर स्टेप दिखाना है। 257.38 डिवाइड बाय 123.69, 257.38 डिवाइड बाय 123.69, शिफ्ट है, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 25 degrees, 40 64 degrees 20 minutes।
4 degree 20 minutes. Okay. Now, if you merely write 64 20 minutes will not suffice. हमको जो कोर्स मिल रहा है quadrantal form में मिल रहा है. So what should be? It should be prefixed by the D-lat. D-lat is north. Northwest. Northwest. तो convert कीजिए into 3 figure notation. Minus डाला equal to so much plus 360. कितना हुआ? 295 degree 40. ये तो हो गया कोर्स. डिस्टेंस निकाल दीजिए. We know the formula. Distance is equal to departure upon departure is equal to how much? D-lat into cos cos और departure into sin cos. तो ये departure यूज कर रहे हैं तो हमारा D-lat भी यूज करते हो. D-lat यूज कर रहे हो तो naturally what will be D-lat? 123.69 divided by what is the cos? Cos cos 64 20 मिनट निकालिए. दोनों से देखिए डिस्टेंस वही आएगा. तो 123.69 डिवाइड बाय cos ऑफ 64 डिग्रीज 20 मिनट्स इज इक्वल टू, कहीं गड़बड़ी किया क्या? देखिए एक बार 123.69 डिवाइड बाय cos ऑफ 64 डिग्रीज 20 मिनट्स. हाँ ओके. कितना आ रहा है डिस्टेंस? 285.569. डिपार्चर से भी निकाल के देख लो. डिपार्चर से भी वही आएगा. डिपार्चर 257.38 डिवाइड बाय 64 डिग्रीज 20 मिनट्स. कितना आ रहा है? सेम थिंग. वही वैल्यू आ रही है ना? Yes, sir. ओके. मैं 5 मिनट और लूंगा टू फाइंड द पोजीशन. ओके. तो ये हो गया सबका. रब कर दें. आई टेक 5 मिनट बिफोर आई ब्रेक यू फॉर लंच. यस सर. सर थोड़ा कैमरा नीचे कर लेंगे, स्क्रीन नहीं दिख रही. आ रहा है? यस सर. एक्चुअली इसको बोर्ड को ऊपर करते हैं तो रिफ्लेक्शन आती है, वो फिर आता है, इसीलिए इसको नीचे रखा हुआ. ऊपर कर देना तो फिर वो रिफ्लेक्शन आता है आपकी आंखों में. ठीक है. ओके. नाउ लेट्स फाइंड द पोजीशन ऑफ द. मिटा दें. Should I rub this off? Yes, sir. मिटा दीजिए. Okay. Now, what was the departure position? बताइए. सर D-lat D-long आ गया अपने से, उससे निकाल लेंगे डायरेक्ट. What is the departure position? So departure position. Latitude क्या है? Latitude कितना है? सर दिखाई नहीं दे रहा सर ऊपर. हाँ. Okay. 40 degrees 12 minutes. Okay. And longitude क्या था? Longitude क्या है? 76 डिग्री 46 मिनट में. 076 degrees 46.0 minutes plus. Okay. What is our D-lat? D-lat कितना है? 123.6 123.7 कर दीजिए. 123.7 तो कितना हुआ? 02 डिग्रीज 03.7 मिनट्स. यही है ना? 123.69 123.7 हुआ. Yes, sir. 2 degree 3 minute 42 60 से seconds. डिवाइड के 2 डिग्री तो आपका अराइवल लैटिट्यूड 15.7 मिनट्स नॉर्थ 42 डिग्रीज. हमारे पास डिपार्चर है. डिपार्चर कितना दिया हुआ है? हमने निकाला 257.38. 257.38 क्या है? ईस्ट वेस्ट वेस्ट.
We cannot put departure. We here require d long. तो d long कैसे मिलेगा? We know that departure d long is equal to cos mean lat. तो d long is equal to departure divided by cos of mean lat. तो mean lat निकालिए इसका. Mean lat कितना आ रहा है बताइए? 42 degrees 15.7 minutes plus 40 degrees 12 minutes is equal to so much divided by 2. 41 degrees 13.85 minutes. तो डी लॉन्ग क्या हुआ निकालिए. टू कितना है? बताइए कितना है? कितना आ रहा है? बताइए. सर 342.32. 342 देखो याद रखना कहाँ गलती होती. कई बार क्या होता है आप लोग एवरीबॉडी इन प्रेशर टेंशन होता है. आपका डिपार्चर से डीलो हमेशा बढ़ा रहेगा. ओनली एट इक्वेटर इट इज इक्वल टू. अथवा डिपार्चर हमेशा कम रहता है. आई हैव सीन पीपल मेकिंग मिस्टेक्स. कई बार होता है डिपार्चर को डीलेट मिले, डीलेट को डिपार्चर मिले. तो आप कॉलम बनाइए उसमें अलग अलग लिखिए, कभी गलती नहीं होगी. सर 32 है 342.32. 342. Okay, convert into degrees and minutes. सर 5 degree 42.3 minutes. 005 degrees 42.3 minutes west. Okay, तो longitude क्या हुआ? 82 degrees 28.3 west. 28.3 minutes west. ये आपका है. ठीक है. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ समझने में? किसी को एनीबॉडी? क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा और बढ़ाते जाएंगे, अदर सिनेरियोज ले लेंगे. ठीक है. इसमें कोई प्रॉब्लम हुई समझने में? देखो बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस, सिंपल अर्थमेटिक है एंड थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है. सर लंच हो गया. हाँ नहीं लंच होगा. मैं आई एम ब्रेकिंग. मुझे भी क्लास है, मेरी भी क्लास है आपको. ठीक है. एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड. किसी को समझ में नहीं आया? आ गया. एनीबॉडी? सबको समझ में आ गया ये? ओके ओके. नेक्स्ट क्लास हम अगला करेंगे. विल डू. जब तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं ये आपका ये डेज वर्क. एंड प्लीज मैं आपको क्वेश्चन भी डालूंगा करने के लिए ऑन द ग्रुप. आपको क्वेश्चन भी डालूंगा कि ये क्वेश्चन करिए. पहले लेट अस डू दैट, उसके बाद हम. ठीक है. ओके चलो लेट्स ब्रेक फॉर द लंच. थैंक्स फॉर योर टाइम. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. बाय.